नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसके पहले वाला जो हमारा प्रीवियस लेसन था, इन दैट लेसन आई टोल्ड यू द सिंपल रूल्स टू फॉलो बाय विच वी कैन इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ऐसे साइन जहां पे हमें ध्यान रखना है कि हमें किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ कौन सा साइन यूज करना है। अगर हम ये ध्यान रखेंगे वी कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जो भी हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है हम उनको इजीली कर पाएंगे। सो एंड आई गेव यू सम क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चंस 1 to 10 and then I told you that question number 10 I will explain you later. So today I am starting today's lesson with the question number 10 which is a numerical problem. इसमें हम देखेंगे कि हमें कहाँ पे किस तरीके का साइन यूज करके we have to solve the question and get correct answer. Let's start the question. The question is an object 5 centimeter in length. So whenever we are solving the question, first of all we have to write what is given. अगर हम जो भी लिख रहे हैं हम स्टार्ट करते जाएंगे। As we read the question we have to write what is given. An object 5 centimeter in length. लेंथ दी हुई है ऑब्जेक्ट की, मीन्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कैन राइट इट एज h or you can write it as ho, that is 5 centimeter. About the sign, as I told you that the height of the object is always positive. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है. विदाउट थिंकिंग यू हैव टू राइट इट विथ पॉजिटिव साइन. देन इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, मींस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 25 सेंटीमीटर. सो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज डिनोटेड बाय u is 25 centimeter. And as I told you, the distance of the object is always negative. So you have to put a negative sign here. ये दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके साइन कभी भी चेंज नहीं होते हैं. Height of the object is always positive. Distance of the object always negative. हमने दोनों फिजिकल क्वांटिटीज लिख दी. From a converging lens, लेंस है जो कि कन्वर्जिंग, तो हमें ध्यान रखना है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है. या हम लिखेंगे इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस. अगर कन्वर्जिंग लेंस है इसका मतलब है ये एक कॉन्वेक्स लेंस है. Then of focal length 10 centimeter. What is given? Focal length denoted by small f is 10 centimeter. So as I told you, if you see the word convex, whether it is a lens or a mirror, if the word convex is given, the focal length will be always positive. अगर convex word दिखाई दे रहा है तो focal length में positive sign आएगा, और अगर कॉनकेव वर्ड होता है तो हमारा नेगेटिव साइन आता है. इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ कन्वर्जिंग लेंस, मींस अ कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन, सो यू हैव टू पुट अ पॉजिटिव साइन विद द फोकल लेंथ. देन फोकल लेंथ, draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image formed. Position means at what distance the image is formed, and the distance of the image is denoted by v, so you have to find out v. Then the size of the image, it will be denoted by h dash. We have to find out and the nature of the image. So if we write all these physical quantities with correct sign, we can easily solve the question. हमने जो भी क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग गिवन लिखा है with appropriate sign. अगर हमने ये सही लिख दिया
we can easily solve the question. Because it is a length, we have to write the length formula. What is the length formula? 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. लेंस फॉर्मूला में हमेशा माइनस आता है and in mirror formula there is a positive sign here. Just keep it in your mind. लेंस दिया हुआ है तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ नेगेटिव साइन लगाना है, और अगर यहाँ पे मिरर दिया हुआ होता तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाते, मिरर फॉर्मूला लिखते. ठीक है. Now put the values. F is 10 centimeter is equal to 1 upon v minus 1 upon u is minus 25. So put minus 25. So 1 upon 10 is equal to 1 upon v minus minus plus 1 upon 25. Then 1 upon v is equal to 1 upon 10 minus 1 upon 25. So we will get 1 upon v is equal to, हमारा 1 upon v आ जाएगा 3 upon 50 centimeter. Always keep it in your mind, this is the value of 1 upon v. So what is the value of v? So it will be, v is equal to 50 upon 3 and it will be 16.67 centimeter. So we have got the distance of the image, that is 16.67 centimeter. It is with the positive sign. जब हमने इसको solve किया, the sign with the value is positive. It is positive 16.67. It means the image is formed just behind the lens. हमने जब साइन कन्वेंशन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि अगर लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में इमेज फॉर्म हो रही है तो नेगेटिव होती है, और जो भी राइट हैंड साइड में इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव साइन वाली होगी. इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव साइन के साथ है, इट मींस द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस. एट व्हाट डिस्टेंस? 16.67 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, हमने v कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट or the size of the image. Now for the height of the image we have to put the formula of magnification. So what is the formula of magnification for a lens? That is m is equal to h dash upon h is equal to, always keep it in your mind that in mirror there is a v upon u, minus v upon u, but in a lens we have to put v upon u without any negative sign. अगर लेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा. So we have to find out h dash. So find out h dash is equal to v upon u. ये h हम यहाँ ले जाएंगे, so it will be v upon u multiplied by h. Now find out the height of the image. What is the value of v? That is 50 upon 3. u is, यहाँ पे u हमने रखा minus 25 and height of the object is 5 centimeter. When you will calculate this, h dash will be minus 3.33 centimeter. You can see here that there is a minus sign, negative sign के साथ आया h dash. So it is about the h dash means the height of the
image with negative sign. So what does the negative sign show? Negative sign क्या show करता है? That the image is below the principal axis. जो भी हमारी इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, मींस इट इज इन्वर्टेड। इसका मतलब है जो हमारी इमेज है वो इन्वर्टेड है। नेगेटिव साइन का मतलब ही क्या होता है कि वो इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है। सो वी कैन राइट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इट विल बी, यहां हमने बता दिया था कि v जो आया था वो पॉजिटिव साइन के साथ आया था, मींस इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। यहां से पता चल रहा है इन्वर्टेड है, सो यू कैन राइट द नेचर, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है इसलिए रियल है, पॉजिटिव साइन के साथ बना था भी। इन्वर्टेड है क्योंकि यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव है, नीचे की तरफ बन रहा है, इन्वर्टेड बन रही है। एंड यू कैन सी द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर but the height of the image is 3.33, means the image is diminished, smaller than the object. So you can write real, inverted and diminished. This negative sign only shows the nature, whether it is erect or inverted. आपको इस नेगेटिव साइन से ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये कम हुई, नहीं। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है वो ये शो कर रहे हैं कि वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। यहाँ पे शो कर रहा है कि वो इरेक्ट है, इट इज अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इट इज इन्वर्टेड, इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। यू हैव टू सी द वैल्यू ओनली। यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, यहाँ हाइट ऑफ द इमेज 3.33 सेंटीमीटर है। तो यू हैव टू सी ओनली द मैग्नीट्यूड, ओनली द वैल्यू ऑफ द हाइट। यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है आपको उसको देखना है, साइन को नहीं देखना है व्हेन यू आर कंपेयरिंग द वैल्यूज। सो द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। सो इट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें ये ध्यान रखना है, इफ वी राइट द गिवन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखना है कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। हम लिखेंगे गिवन कॉन्केव लेंस। में ध्यान रखना है कि दिया हुआ क्या है, कॉन्केव लेंस है। नाउ द फोकल लेंथ इज गिवन, दैट इज 15 सेंटीमीटर। If the concave word is given, so the focal length will be negative sign. Then an image 10 centimeter from the lens. Image form हो रही 10 centimeter away, means the image distance is 10 centimeter. Now we have to think about the sign with this 10 centimeter, क्योंकि v can be positive or be negative. और यहाँ हमारा है कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस जो है वो हमेशा क्या बनाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। और हमने बताया था कि अगर लेंस है और उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, देन v विल बी नेगेटिव साइन। आप अपने उसमें प्रीवियस लेसन में देखिएगा, हमने बताया था कि अगर लेंस दिया हुआ है और उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। वैसे भी कॉनकेव लेंस में हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। So V is -10 centimeter. How far is the object placed? Means you have to find out the value of U. Then you have to draw the ray diagram. Because this is the lens, put the lens formula, that is 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U. F is -15, V is -10 minus 1 upon U. 1 upon
upon u is equal to 1 upon 15 minus 1 upon 10. So u is equal to, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 30 आ जाता है और ये आ जाता है आपका 2 minus 3. So u will be minus, oh sorry, ये आपका लिखना है 1 upon u. ये आएगा 1 upon u is equal to minus 1 upon 30. So u will be minus 30 centimeter. U is with negative sign means the answer is correct because u means the distance of the object is always negative. अगर हमारा माइनस में आंसर है इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट on the left hand side of the lens or the mirror. हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है इसलिए उसके साथ हमेशा नेगेटिव साइन आता है. So you can say that the object is placed at minus 30 centimeter. Now you have to draw the diagram. Diagram आपको बनाना है. ये हमारा क्या है? कॉनकेव लेंस है. अगर हमारा फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट रखा है हमारा 30 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब है हमारे को ऑब्जेक्ट रखना है बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर. हमने दो सिचुएशन पढ़ी थी, एक तो इंफिनिटी पे था और दूसरा क्या था, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए. ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा और ये हमने 2 लॉज जो भी है हमने लगाए, ये आया और ये क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है और यहाँ हम इसको इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं विद द डॉटेड लाइन. ये ऑप्टिकल सेंटर से गया और ये सीधा पास हो गया और वेयर दीज 2 rays intersect each other the image is formed. So this is the ray diagram. आपको यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बनाना है और ये इस तरीके से इसका रे डायग्राम होगा. So the ray diagram is according to the question कि हमें पोजीशन क्या रखनी है ऑब्जेक्ट की और हमारा जो इमेज है वो किस तरीके से फॉर्म होगा. So it is all about the question number 10 and 11. That's all for the day. Keep practicing on the numerical problems. Thank you and have a nice day.